Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 16th March 2022. It's a big positive day for markets. Nifty is up around 300 points and Bank Nifty is also up around 700 points. And कल Nifty Bank Nifty का weekly options expiry है. And important point is that we have got a Fed decision tonight. So कल का जो expiry that is extremely important. क्यों बोला था, we will be having interest rate hike in US market that is expected to be around 0.25, but उसके ऊपर अगर आपको interest rate hike है तो probably we may have a knee-jerk reaction tomorrow. And we closed very strong at 330, almost 300 and 700 points Nifty and Bank Nifty. And I have observed many times that event के पहले generally we will be closing stronger, but next day morning there will be a big gap down. And in this video we will see what to do tomorrow, and थोड़े stocks and commodities में chart setups देखेंगे as per our TDF X1 system. This is X1 system chart. You can see this is Nifty chart, Nifty futures chart. इसमें देख लीजिए अपने पास एक buy signal चल रहा था. This signal was known to you, and you can see here this was a buy signal which got triggered somewhere here, and you can see even from there we have got almost 600-700 points कुछ profit आया था इसमें. So इसमें देख लीजिए ये buy signal, this was already explained to you in the previous videos. So earlier we were in downtrending zone. So downtrending zone में किसी भी stock है तो we want multiple conditions to be satisfied. वो conditions पूरा satisfy होने के बाद में you can see somewhere here our order got triggered. And उसके बाद में देख लीजिए next day morning there was a big gap up, and then on that day we have got this one. ये सब आपको ये छोटे छोटे जो भी movements आता, these are intraday movements, it has got nothing to do with the overall trend. So इसमें यहाँ पे देख लीजिए there was a sell signal, and ये sell signal जब आया था you can see here filter was red and candles are not red here. So this is a very good point to take one more long position. So whenever you have this kind of कभी भी अपने पास sell आए तो we want three conditions to be satisfied. Filter, candle, box must be red. But यहाँ पे देख लीजिए only filter was red and candles are not becoming red. Even if you don't want to take risk here, you can take risk somewhere whenever you get pulled back up to this particular dots, you can take that one more entry. और आप पुराना जो भी है उसको ही कंटिन्यू कर सकते हैं. सो दिस सिग्नल इज नॉट वैलिड सिग्नल एंड इट इज नॉट ट्रिगर्ड. एंड इन दिस प्रोसेस यू कैन सी हियर वी हैव गॉट अ जीरो क्रॉसओवर. ये ऑसिलेटर जीरो के ऊपर चले गया था. सो ये जीरो के ऊपर ये ऑन दिस पर्टिकुलर डे इट हैज गॉन अप, एंड अप टू दिस पॉइंट ये पुराना जो डाउन ट्रेंडिंग जोन का इफेक्ट था उसका इफेक्ट पूरा चले गया. सो दैट इज गॉट नलिफाइड हियर. सो यहाँ देख लीजिए दिस इज द पॉइंट वेयर आवर ओरिजिनल जो ओल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिबन. सो द डाउन ट्रेंडिंग जोन इज ओवर एंड वी आर इन न्यूट्रल जोन. एंड इवन एज ऑफ नाउ आज भी आप न्यूट्रल जोन में है. आई जस्ट पुट वन वर्टिकल लाइन हियर. सो यू कैन सी हियर आई एम जस्ट so this is the point where our this one downtrending zone got closed. So from here, from this particular area we are in neutral zone. So neutral zone में अपना rules change होता. downtrending zone में we want 3 conditions, but neutral zone में we want only 2 conditions. So इसमें देख लीजिए whenever we get a signal यहाँ पे ये buy signal आया था, but it is not a valid signal. क्यों बोलते हो? This is only continuation. ये पुराना sell signal trigger हुआ तो ही अपन इसमें buy करते. That is the reason this is called continuous signal, and इस पे अपन काम नहीं करते. So this is not valid signal. ये visually valid है. क्यों बोलते हो? Filter is green, candles are green, box is green at that point of time, but this is not valid for entry. So visually किसी भी signal valid होगा तो immediately वहाँ पे buy नहीं करना चाहिए. What we want is ये buy signal लेने के लिए compulsorily we want a sell position running in this chart. So ये sell signal did not trigger, so this is not valid signal. And ये भी आपको invalid signal है. And उसके बाद में देख लीजिए we got a sell signal here. So whenever we get a sell signal we want ये zero crossover के बाद में this is the first signal, so it's a very good sell signal. So sell आए तो क्या करना चाहिए? We want filter, candle, box plus dots must become red. So यहाँ पे देख लीजिए आपको filter तो red है ये point of time ये candle के ऊपर, but candles are not red here. So candle has become red on this next candle पे आपको red हो गया था, and वो टाइम में आपको box भी red है. So our sell signal will trigger below this one. ये इसके नीचे अपना sell trigger होता था. इसका लो देख लीजिए. So इसका लो is 16,556.
सो 16,556 में से 10 रुपीज़ निकलना चाहिए। सो 16,546 में अपना सेल ट्रिगर होता, बट इसके नीचे कल नहीं गया था। एंड बाय एंड ऑफ सेशन ये कैंडल फॉर्म होने के बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, आपको एक कलर चेंज होगा कैंडल का। एंड इवन इफ यू हैव शॉर्टेड हियर, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम दैट नो 16,546 विल बी ट्रिगर्ड and let us say it closed at 16,500 or 16,600, whatever it is. So whether to hold a position or not will be decided by this particular indicator. यहाँ पर देख लीजिए ये जो blue color indicator, this is called HTF indicator. So whenever we take any position intraday में अगर आप ये short किया तो भी 330 तक this must change into pink color. अगर ये pink में नहीं है तो if it is in blue color, आपका जो भी short position है वो close करना चाहिए। and next day morning आप reopen कर सकते हैं, but compulsorily आप क्लोज करना चाहिए शॉर्ट पोजीशन को इफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इज इन ब्लू कलर। अगर ये पिंक है तो आपका जो लॉन्ग पोजीशन है वो क्लोज करके जाना चाहिए। दिस पॉइंट इज क्लियरली एक्सप्लेन मेनी टाइम। सो यहाँ पे देख लीजिए सेल तो ट्रिगर नहीं हुआ, अगर ट्रिगर हुआ तो भी अपन यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर वी वुड हैव क्लोज आवर पोजीशन। एंड दिस इज नो फर्स्ट सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉसओवर। अगर ये ट्रिगर हो गए तो इट वुड हैव बीन वेरी गुड सिग्नल, बट ये ट्रिगर नहीं हुआ था। एंड यू कैन सी हियर इट इज इन न्यूट्रल जोन। सो न्यूट्रल जोन में आपको X1 भी आया था। सो X1 से भी अपना सेल ट्रिगर नहीं हुआ एंड F ट्रेंड से भी सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ। सो ये दोनों आने की जरूरत नहीं है, ओनली डाउन ट्रेंडिंग जोन अप ट्रेंडिंग जोन में दोनों आना चाहिए, बट न्यूट्रल जोन में एनी वन विल बी इनफ। सो ये दोनों में किसी भी सिग्नल आए तो वी विल सी फॉर फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस डॉट्स कंडीशन देख के अपन उसमें सेल करते हैं। सो डॉट्स देख लीजिए, आपको मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट बी रेड। सो एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड हियर, बट बिकॉज ऑफ आवर स्प्रेड और वट एवर इट इज नो, इसका ये जो सेल सिग्नल डिड नॉट ट्रिगर। सो इन दिस एरिया यहाँ पे देख लीजिए इट इज नॉट वैलिड सिग्नल, ये भी वैलिड नहीं है, ये वैलिड है बट डिड नॉट ट्रिगर। एंड उसके बाद में देख लीजिए वी गॉट वन मोर बाय सिग्नल टुडे बिकॉज ऑफ नो आज मॉर्निंग आपको एक गैप अप आया था। सो दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन, अपना जो पुराना निफ्टी में जो बाय सिग्नल चल रहा 16,000 जो भी है 300 लेवल से जो बाय सिग्नल चल रहा था, सेम सिग्नल इज रनिंग एज ऑफ नाउ। अगर ये सेल में गए तो ही अपन आज बाई करते थे। सो 16,300 में जो बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था, नाउ इट इज एट 17,000। सो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट है इन स्पाइट ऑफ दिस मच वॉलेटिलिटी। इसमें देख लीजिए आपको ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर अब कंसोलिडेशन था एंड अगेन इट वेंट अप एंड नेक्स्ट डे इट केम डाउन एंड टुडे मॉर्निंग गॉट अ गैप अप। सो इन दिस वॉलेटिलिटी देयर इज नो फेक सिग्नल। सिग्नल्स तो आ गए आपको, बट बिकॉज ऑफ आवर कंडीशंस these are not valid signals. So important point to observe is X1 system is 100% rule based system. इसमें आप कुछ भी गेस करके काम करने की जरूरत नहीं है। So इसमें as of now निफ्टी में बाय सिग्नल चल रहा एंड HTF is supporting. So हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी आपको इसका हायर टाइम फ्रेम भी बाय में है बोल रहा एंड 3 बॉक्सेस ग्रीन है एंड इट क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट नो टॉप ऑफ द डे। ये आज का जो हाई का रेंज है वहां पे क्लोज हो गया था। आज इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक। सो इवन देन वी गॉट वेरी स्ट्रांग क्लोज एंड दैट टू विथ 3 ग्रीन बॉक्सेस एंड फिल्टर देख लीजिए कंटिन्यूसली देयर इज नो सेलिंग प्रेशर हियर। सो एवरीथिंग इज बुलिश इन दिस चार्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर स्टॉप लॉस फॉर योर करंट जो भी लॉन्ग पोजीशन है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। सो व्हेनेवर यू गेट दिस सेल एंड बाय देयर विल बी ए सपोर्ट फॉर्म्ड हियर। सो दिस इज योर स्टॉप लॉस लेवल। सो 16,000 जो भी है ये 545। सो 16,300 में अपना बाय ट्रिगर हो गया था। सो एज ऑफ नो योर स्टॉप लॉस इज 16,550। सो कल मॉर्निंग आपको 500 पॉइंट्स नीचे आए तो भी आपको लॉस नहीं रहता, क्यों बोलते हो वी बॉट एट 16,300 एंड आवर स्टॉप लॉस इज 16,550। and whenever you see this kind of strong closing, what I observed is many times we'll be having strong closing before event, but next day morning आपको गैप डाउन होने का चांस रहता है, बट उसमें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों बोलते हो इसमें एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज बुलिश एंड और एक पॉइंट क्या बोलते हो, ये जीरो क्रॉस ओवर के बाद में ये फर्स्ट सिग्नल वेदर ट्रिगर्स और डज नॉट ट्रिगर, ये ट्रिगर होने दो या ट्रिगर नहीं होने दो, उसके बाद में और एक बाय आए तो दिस इज कंसिडर्ड एज सेमी ट्रेंडिंग जोन। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज इन सेमी ट्रेंडिंग जोन। सो सेमी ट्रेंडिंग जोन एंड ट्रेंडिंग जोन में डिफरेंस क्या है बोलते हो, ट्रेंडिंग जोन में एज आई टोल्ड यू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम एंड नो मल्टीपल कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, बट सेमी ट्रेंडिंग जोन में नाउ टू टेक ए सेल सिग्नल इन निफ्टी वी वांट सिग्नल ओनली फ्रॉम एरो। X1 से जो सिग्नल आता दैट विल नॉट बी इनफ। सो कंपल्सरली कल आपको इसमें सेल आए तो निफ्टी में दैट मस्ट बी फ्रॉम एरो ओनली। सो दिस एरो इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड सिग्नल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंडिंग जोन एंड सेमी ट्रेंडिंग जोन।
सो इसमें और एक पॉइंट क्या बोलते हो यहाँ पे देख लीजिए, सम डॉट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड हियर, 4 + 4 8 डॉट्स। अगर आपको ये 21 डॉट्स हो गए तो टुमारो इट विल बी गोइंग इनटू ट्रेंडिंग जोन। सो ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में क्या होने का चांस रहता है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, एज आई टोल्ड नो दिस इज द फर्स्ट वेव, एंड आफ्टरवर्ड्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, और नो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम। सो दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर, एंड ये आपको वेव स्ट्रक्चर है। सो ये ऑलरेडी आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया था। सो इसमें मेन पॉइंट टू ऑब्जर्व इज अपना बाय सिग्नल चल रहा, and there is no phase signal in this consolidation, and if you have got some other software you would have sold here, bought here, sold here, bought here, no 10 times आपको buy sell आता, but अपने पास कुछ भी सिग्नल इसमें ट्रिगर नहीं हुआ था। दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ X1 सिस्टम। एंड ऑप्शंस में कैसे काम करना कल के लिए थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। नाउ लेट अस गो टू बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी में भी आपको सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लीजिए, अल्पोटर पीरियड सपोर्टर। सो इसमें अपना पुराना जो सिग्नल था द गॉट क्लोज, एंड ये डाउन ट्रेंडिंग जोन भी आपको देख लीजिए कल इसमें क्लोज हो गया था, एंड यस्टरडे वी गॉट अ सेल सिग्नल। सो उसके पहले जो सेल सिग्नल था यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, एंड ये भी आपको कंटिन्यूशन है सेम, आपको निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग हियर। सो यहाँ पे देख लीजिए दिस सिग्नल वाज वेरी गुड सिग्नल बट इट डिड नॉट ट्रिगर हियर। सो इसके नीचे गए तो अपन कल सेल करते थे, एंड टुडे अगेन दिस इज अ कंटिन्यूएशन। सो दिस इज आल्सो नाउ यू कैन सी हियर जीरो क्रॉस हो गया था, एंड आफ्टर जीरो क्रॉस ओवर सेल हैज कम, and this cell is not triggered. Even if it triggers, if you get a one more buy signal, it is considered as semi trending zone. So इसमें भी sell करना बोल तो compulsorily that must be with arrow only. So X1 से काम नहीं चलता, semi trending zone में X1 से काम नहीं चलता। So in this consolidation X1 system में there is no fake signal in bank nifty chart. So this is the strength of X1 system. So किसी भी सॉफ्टवेयर आपके पास है तो एक बार कंपेयर कीजिए, कंपेयर कर तो आपको आइडिया आता what is the strength of this one, why this is costly। and इसमें यहाँ पे देख लीजिए whenever no for example कल ये सेल ट्रिगर हुआ तो भी ये पोजीशन आप नहीं लगाते थे, क्यों बोलते दिस इंडिकेटर इज इन ब्लू कलर। सो जब तक आपको ये ब्लू कलर में है तब तक 90% ऑफ टाइम गैप अप्स आने का चांस रहता। सो एवरीडे गैप अप आना बोल के रूल नहीं है, बट 90% ऑफ टाइम दैट इज अ प्रोबेबल मूव दैट विल कम इन दिस पर्टिकुलर दिस वन। नो ये ब्लू है तो 90% ऑफ टाइम गैप अप्स आता, अगर आपको ये पिंक है तो 90% ऑफ टाइम गैप डाउन आने का चांस रहता है। एक ही बार कभी कभी ये ट्रेंड चेंज होने का टाइम में आपको फिर गैप डाउन आने का चांस रहता है, ब्लू कलर है तो, नहीं तो फेक गैप डाउन आने का चांस रहता है। सो फेक गैप डाउन आए तो ये डॉट तक है तो इमीडिएटली बाय कीजिए। सो ये फेक गैप डाउन क्या बोल के आपको आइडिया नहीं है तो एक बार हमारा इसमें जाइए, यू कैन गो टू अवर यूट्यूब चैनल, इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल के यहाँ पे देख लीजिए। सो दिस इज द गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बोल एक बार देख लीजिए। एंड हमारा जो सिस्टम है उसमें वी हैव गॉट सेपरेट टाइप्स ऑफ गैप्स, एक बार देख लीजिए आपको आइडिया आता है। एंड X1 सिस्टम के बारे में सेपरेट वीडियोस है, ट्रेनिंग वीडियोस है, एंड X2 के बारे में वीडियोस है, एक बार देख लीजिए। बहुत सारे अदर दिस वन प्लेलिस्ट अदर यू कैन सी, दिस इज X2 सिस्टम यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज फॉर ऑप्शंस, यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिस इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर ऑप्शंस। सो कभी कभी आपको छोटा लॉस रहता है इसमें, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, उसमें आप कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, अल्टीमेटली विल मेक मनी। इसमें कुछ भी रूल नहीं रहता। दिस इज X2 सिस्टम, इसमें आपको एक ही इंडिकेटर रहता है, दिस इज वन इंडिकेटर, सॉरी सिग्नल एक ही रहता है, इंडिकेटर्स और यहाँ पे देख ले दिस इज वन इंडिकेटर, एंड ये भी आपका और एक इंडिकेटर है, बट सिग्नल तो आपको एक ही रहता। दिस इज ब्लू कलर्स कलर है तो यहाँ पे पुट ऑप्शन बेचना चाहिए, और यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। फिर आपको यहाँ पे दिस सिग्नल विल नॉट कम ऑन दिस वन, ये सिग्नल ये कैंडल जब स्टार्ट हुआ तो ये सिग्नल फॉर्म होता। सो गैप अप आए तो छोड़ दीजिए, क्यों बोलते गैप अप आए तो दैट रिस्क रिवॉर्ड विल नॉट मैच, देन यू हैव टू वेट फॉर सम पुल बैक टुवर्ड्स दिस चैनल एंड देन टेक एंट्री। सो ये सब आपको हमारा ये ट्रेनिंग वीडियो में एक्सप्लेन करें, एक बार देख लीजिए। दिस इज निफ्टी चार्ट, एंड इसमें बैंक निफ्टी 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। दिस इज X2 सिस्टम। सो ये स्कल है तो X2 सिस्टम, एंड ये एरोस वगैरह है तो दैट इज कॉल्ड X1 सिस्टम। सो X2 में कुछ भी रूल नहीं रहता, X2 इज नो रूल्स, एंड X1 में आपको रूल्स रहता। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड देयर। सो एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। सो इफ यू वांट सिंपल सिस्टम टू ट्रेड फॉर दिस वन ऑप्शंस, यू कैन गो फॉर X2 सिस्टम। अगर फुल स्विंग पकड़ना बोलते हो यू कैन गो फॉर X1 सिस्टम। सो X1 इज फॉर ट्रेंड एंड स्विंग ट्रेडिंग, फुल ट्रेंड कैचिंग, एंड X2 इज फॉर मोमेंटम कैचिंग। सो ऑप्शन में आपको क्या चाहिए, इमीडिएटली आपको थोड़ा 40-50 पॉइंट या 60-70 पॉइंट जो भी है पकड़ के आप निकलना चाहिए। सो दैट इज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, X2 इज फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग।
एंड x1 इज फॉर दिस वन नो फुल ट्रेंड कैच करना बोलो, दिस इज द सिस्टम. सो इसमें एज ऑफ नो निफ्टी में ऑलरेडी इन प्रॉफिट में है, बैंक निफ्टी में भी अपन प्रॉफिट में है. सो दोनों में भी आपको कल का जो लो है दैट इज स्टॉप लॉस एंड एज ऑफ नो बोथ आर स्ट्रांग. बट बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है. यहाँ पे देख लीजिए दिस इज नो हैविंग ओनली वन ग्रीन कलर बॉक्स एंड वन ग्रीन कलर रेड. सो दोनों को कंपेयर करो तो निफ्टी को और बैंक निफ्टी कंपेयर करो तो यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी में वी हैव गॉट 3 बॉक्सेस ग्रीन, बट बैंक निफ्टी में उतना स्ट्रेंथ नहीं है. ऑफ कोर्स इसमें हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी आपको बाय में एवरीथिंग इज फाइन, बट किसी भी रीजन से आपको कल मॉर्निंग पुल बैक आए तो एक गैप डाउन आए तो वहाँ पे बाय कीजिए. तो इसके बाद में देखेंगे क्या करना, और ऊपर गए तो भी क्या करना. ऑप्शन टेबल में अभी देखेंगे, यू कैन सी दिस इज बैंक निफ्टी ऑप्शन टेबल. पहले अपन निफ्टी ऑप्शन टेबल देखेंगे. दिस इज एक्सट्रीमली बुलिश ऑप्शन टेबल. सो इसमें देख लीजिए आपको हमारा जो प्रॉबेबल एक्सपायरी दैट इज कमिंग टू 17,000. सो अभी क्लोज एट अराउंड द सेम लेवल. ये जो कैलकुलेशन दैट इज आवर प्रोप्राइटरी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 80% के ऊपर हमारा एक्यूरेसी है. सो निफ्टी में हमारा एक्सपायरी इज कमिंग टू 17,000 एंड बैंक निफ्टी में 35,600 पे आ रहा. सो बैंक निफ्टी में थोड़ा नीचे आ रहा, निफ्टी में इट इज कमिंग एट एटीएम लेवल. बट ये जो भी कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट दिस वन नो, ये प्रेजेंट चार्ट के ऊपर, ये प्रेजेंट टेबल के ऊपर कैलकुलेशन बेसिस पे कि ये सो है वो. सो कल ये चेंज होता, क्यों बोलते हो, कल ओपन इंटरेस्ट चेंज होता, फिर वॉल्यूम चेंज होता, फिर आईवी चेंज होता, ये सब चेंज होता. सो कल का जो लेवल से विल बी अपडेटिंग इन ट्विटर अकाउंट. सो 130 को 230 को वी आर प्रोवाइडिंग दिस लेवल. सो इफ यू आर हैविंग दिस वन नो ऑप्शन में कुछ नॉलेज है तो ट्रेडिंग कैसे काम करना बोल के, दिस पर्टिकुलर प्रॉबेबल एक्सपायर लेवल इट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू. सो एक बार इसको फॉलो करें, ट्राई कीजिए. सो मोर देन 80% एक्यूरेसी है इसमें हमारा. सो 130 को एक लेवल आता, 230 को एक लेवल आता, नोटिफिकेशन मिलता है आपको. सो ट्राई टू फॉलो अवर दिस वन लाइव ट्रेड्स अवर दिस वन ट्विटर हैंडल. सो फॉलो करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता. And if you are scalper you can do lot of things based on this probable expire level. और इंट्राडे में अगर आप स्ट्रैटेजिस्ट लैंग्वेज वगैरह काम कर रहे हो तो भी पहले आपको आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ पे एक्सपायर होता है बोल के. सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड इसमें देख लीजिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल में देख सकते हैं आप, ये भी आपका बुलिश है बट इट इज़ नॉट सो बुलिश लाइक निफ्टी ऑप्शन टेबल. एंड इसमें कल मॉर्निंग आप गैप अप मिल गए तो 35,700 का पुट ऑप्शन लेकर ट्राई कीजिए. नाउ इट इज एट 379. सो इतना रेट में आप नहीं खरीदना चाहिए. क्यों बोल तो यहाँ पे देख लीजिए दिस इज 372. एटीएम का कॉल ऑप्शन इज एट 372 एंड एटीएम का पुट ऑप्शन इज एट 379. सो दोनों मिलाए तो कितना होता है ऑलमोस्ट 750 760 जो भी है. सो दिस इज एक्सट्रीमली हेवी प्रीमियम. सो इतना प्रीमियम्स जनरली नहीं रहता आपको एक्सपायरी के दिन बिकॉज ऑफ दिस वन नो अपना जो ये फेड का जो डिसीजन है, बिकॉज ऑफ दिस मच वोलेटिलिटी इज देयर. सो टुमारो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज गैप अप आए तो फिर थोड़ा नीचे आता, तो गैप डाउन आए तो फिर थोड़ा ऊपर आता. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम इन चार्ट एंड देन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम ये पूरा खाने का चेक कर रहा था कल. सो कल थोड़ा केयरफुली काम कीजिए. ऑप्शन सेलर्स का डे है कल. and I am not convinced this particular moment. I am not convinced about this one. Of course it may go up but at some point of time again will come down. क्यों बोल तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है हाइक करने, that is not good for Indian market. Of course only Indian market के लिए बैड नहीं है, emerging markets के लिए सबके लिए बैड है. क्यों बोल तो outflows will be there. Even every day we are getting selling figure from FIs. Of course वो सब अपन नहीं देखते, अपन चार्ट्स में जब अपन काम कर रहे हैं एक्सपेंस सिस्टम में वो सब अपन नहीं देखते. बट जनरली आपको एक इकोनॉमी का एक पिक्चर रहना चाहिए इफ यू आर ए ट्रेडर. सो इंटरेस्ट रेट्स अगर आपको यूएस में हाइक हो रहा बोल तो 0.25% का इंटरेस्ट रेट हाइक भी it will be having a big effect in international market. So interest rate hike, don't take it lightly. So some point of time we will get selling pressure again and forget about the days 18,000 19,000 वो टाइम चले गया. वो टाइम का वो टाइप का मोमेंट आपको नहीं आता. So every day will be having volatility but ultimately will not be going anywhere. Will be in this range only 15,500 and 17,500. This is what is range for this financial year unless we get some bad news or good news. This range will not be broken. So 15,500 to 17,500 in Nifty and बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए आपको 32,000 से 39,000 या 40,000 जो भी है 6,000 ये जो भी लेवल है इसका, ये जो दोनों का बीच में ही ये टाइम पास होने का चांस है. सो इफ यूर ऑप्शन ट्रेडर यू कैन अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेवल. सो केयरफुली काम कीजिए. अननेसेसरी हेवी लॉन्ग पोर्शन और हेवी शॉर्ट पोर्शन नहीं लीजिए. क्यों बोलते हो कल देख लीजिए वी गॉट ए दिस वन
अच्छा सेलिंग प्रेशर था. टुडे मॉर्निंग गॉट अ बिग गैप अप, सो अल्टीमेटली विल बी ट्रैप्ड. एंड वन मोर पॉइंट क्या बोलते हो, कल इसमें एक आउटसाइड डे का फॉर्मेशन था. यू कैन सी हियर इन निफ्टी. सो वेन एवर वी हैव गॉट दिस वन नो, ये उसका पहले का दिन का ये है हाई एंड लो. सो कल का जो देख लीजिए, आपको ये हाई को ऑलमोस्ट टच किया था. इट डिड नॉट क्रॉस, बट ऑफ कोर्स वी कैन टेक इट एज दिस वन नो, ये क्रॉस करके सेम डे आपको प्रीवियस डे का लो को भी क्रॉस किया था. सो लेट अस सी वेदर इट गॉट दिस वन नो. यू कैन सी हियर दिस इज द लो 16,610. और यहाँ पे देख लीजिए आपको 16,556. सॉरी एक बार देखेंगे 16,610, 16,556. एक्चुअली इसमें सेल ट्रिगर हो गया था अपना बिकॉज ऑफ दिस वन नो, अपना आउटसाइड डे का फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें सेल ट्रिगर हो गया था. सो प्रीवियस आपका कुछ भी लॉन्ग पोजीशन तो एग्जिट हो सकते थे और शॉर्ट पोजीशन भी आप लगा सकते थे. बट यहाँ पे देख लीजिए बाय एंड ऑफ सेशन दिस इज नॉट सपोर्टिंग यू, सो यू मस्ट क्लोजर पोजीशन. सो आउटसाइड डे में अगर आप सेल लिए तो भी आपको इसमें ये कंपल्सरी STF मस्ट सपोर्ट टू कीप द पोजीशन. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार याद रख लीजिए. एंड नेक्स्ट अभी स्टॉक चार्ट्स थोड़ा फास्ट फॉर्म में देखेंगे, क्यों बोलते तो वीडियो भी कम लेंथी. नेक्स्ट जो फ्राइडे वीडियो है उसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन स्टॉक चार्ट्स, मेनी स्टॉक चार्ट्स इन रिकवरी मोड. सो लेट अस सी चार्ट्स इन फास्ट मोड. एंड X1 सिस्टम में एरो रहता है, X2 में आपको स्कैल रहता. सो लेट अस सी चार्ट नाउ. दिस इज बैंक निफ्टी X1, दिस इज X2 सिस्टम चार्ट, एंड दिस इज Nasdaq चार्ट. यू कैन सी इट इज गोइंग अप. एंड डॉ जोन्स का चार्ट भी ऊपर जा रहा. एंड 4 आवर का X2 का सिस्टम चार्ट है. एंड दिस इज मारुति चार्ट. इसमें देख लीजिए आपको बाय सिग्नल आ गया था. एंड दिस इज वीक सिग्नल, सो दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. ये भी आपको कंटिन्यूस सिग्नल है. एक बार सेल है तो इसमें सेल कीजिए और एक बार यहाँ तक जाने का चांस है. और नेक्स्ट जुबिलेंट फूड्स लूप इन, इसमें भी देख लीजिए आपको दिस इज कंसोलिडेशन बट देयर इज नो फेक सिग्नल. सो सेल के लिए रेडी है. इसमें कंडीशन सेटिस्फाई होकर इसमें सेल कर सकते हैं. इंडिगो में बाई चल रहा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बाई सिग्नल चल रहा. दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, ये भी आपको वैलिड नहीं है. ऑलरेडी दिस सिग्नल इज वैलिड हियर. ये सब आपको रूल बाय सिस्टम है. TCS में देख लीजिए आपको इसमें बाई सिग्नल चल रहा था. एंड दिस इज कंसोलिडेशन, देयर इज नो सिग्नल ट्रिगर्ड हियर. एंड लेट अस सी नेक्स्ट HDFC बैंक बोथ आर इन बाय. सन फार्मा बाई में है, अपट्रेंडिंग जोन में है. दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. क्यों वैलिड नहीं है, एक बार हमारा TDF जोन्स का वीडियो देख लीजिए. दिस इज अदानी पोर्ट्स, भारतीय एयरटेल बोथ आर इन बाय, ग्रासिम बाय, हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय सिग्नल है. और सॉरी सेल सिग्नल चल रहा था. डॉक्टर रेड्डी सेल सिग्नल रेडी है. DLF रेडी है फॉर बाय. RBL बैंक, टेक महिंद्रा, जी लिमिटेड बाय में, ITC बाय में, अपट्रेंडिंग जोन में है. टाइटन बाय इन अपट्रेंडिंग जोन, सिप्ला बाय में है, अपट्रेंडिंग जोन में. यू कैन सी दिस इज अ रिबन हियर, इट इज कंटिन्यूसली गोइंग अप. एंड JSW स्टील बाय के रेडी है. इसमें रिलायंस, ONGC सेल, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक बाय, हीरो मोटर्स बाय, कोल इंडिया सेल, BPCL, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक बाय, हिंडाल्को सेल में, टाटा स्टील सेल में, इन्फोसिस इन बाय. एंड बिटकॉइन चार्ट है. एंड दिस इज इंडसइंड बैंक, दिस इज $80. एंड बिटकॉइन चार्ट LNT चार्ट बाय में है. M&M बाय, दिस इज 1 आवर चार्ट. एंड दिस इज वेदांता बाय के लिए रेडी है. HDFC लाइफ, UPL बाय, टाटा मोटर्स, SBI बाय में है, IRCTC बाय, बैंक ऑफ बड़ौदा बाय, कोफोर्ज सेल, ICICI बैंक. क्रूड ऑयल इज कमिंग डाउन. यहाँ पे देख लीजिए दिस इज ओके सिग्नल. क्यों बोलते हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग. सो एक पुल बैक आना चाहिए. दैट पुल बैक इज नॉट कमिंग. प्रॉब्ली वी मे गेट दैट पुल बैक आफ्टर दिस वन फेडरेशन के बाद में एक पुल बैक आने का चांस है. दैट पुल बैक विल डिसाइड द फेट ऑफ क्रूड ऑयल. एंड नेक्स्ट इज सिल्वर. ये सिल्वर देख लीजिए आपको बिग अपट्रेंड था. एंड देन अगेन वी गॉट दिस वन नो सेलिंग प्रेशर इज कमिंग. यूरो USD सेल में है, गोल्ड सेल में है. And we came back to Bank Nifty. So there are many charts here. It is not possible to show each and every chart. You can see in this particular data field you will get NSE, MCX, NCDX. NSE में cash का stocks मिलता, futures का chart मिलता. So everything will come here. And international market में you can see global indices will come. And gold, silver, copper ये सब आपको मिलता COMEX का. And Forex में you can see all pairs and cryptos का भी यहाँ पे देख लीजिए. So किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हैं. X1 I told you for this one no trend trading के लिए है, पूरा swing पकड़ने के लिए. X2 is momentum and you can get whichever time frame you want. And 1 minute is for intraday, M5 is also for intraday, M15 is for swing trading and intraday trading. So M15 is our preferred time frame. क्यों बोलते हो from this particular time frame you can do lot of things. इसमें आपको इंडियन मार्केट में 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम अच्छा सेट हो जाता. इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट में इफ यू वांट ट्रेड यू कैन गो फॉर हायर टाइम फ्रेम्स लाइक 1 आवर और 30 मिनट टाइम फ्रेम.
So time frame selection is extremely important to be a successful trader. So ये पॉइंट आप याद रख लीजिए एंड हमारा हर वीडियो में देख लीजिए आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिलता है, कुछ टाइम पास मटेरियल नहीं मिलता. If you are interested to learn something from markets and if you want to learn about technicals etc, our channel is for you. And if you like our content, you can subscribe to our channel. and हमारा वेबसाइट है livetrades.com, हमारा विजिट कीजिए. हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है. बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम इज स्पेशलिटी. सो इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, वी हैव गॉट सेपरेट कोर्स एंड positional trading के लिए भी we have got separate course. So if you are interested, you can join those courses to become master in options. And we will end up this video here and let us meet in next video. Thanks for watching.